Jai Hind dear students. Today we start with poem number 4 of Hornbill Childhood. It is written by Marcus Netton. बच्चों आज हम कक्षा 11वीं की हॉर्नबिल बुक की कविता नंबर 4 चाइल्डहुड पढ़ने जा रहे हैं जिसे मार्कस नेटन ने लिखा है. Marcus Netton was an Australian writer. He was born on 23rd June 1975. His best work for The Book Thief and the Messenger. He won the Margaret A. Edward Award in 2014. बच्चों, मार्कस नेटन एक ऑस्ट्रेलियन लेखक हैं. उनका जन्म 23 जून 1975 में हुआ. उनकी रचित 2 किताबें द बुक थीफ एंड द मैसेंजर, जिन्होंने 2014 में मार्गरेट ए. एडवर्ड अवार्ड प्राप्त किया था. अबाउट द पोएम के बारे में हम जानते हैं. The poet seems puzzled about the loss of childhood. It is natural in the process of growing up. Still, the poet tries to find an answer to his 2 queries. Number 1, when did my childhood go? Number 2, where did my childhood go? कवि अपने बचपन की समाप्ति के विषय में व्याकुल हैं. वह बड़े होने की प्रक्रिया में सामान्य है, परंतु कवि अपने 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है. वह प्रश्न है, मेरा बचपन कब बीत गया, मेरा बचपन कहाँ गया. आइए हम पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं. चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन. इन दिस पोएम द पोएट थिंक्स ओवर द लॉस्ट चाइल्डहुड. ही वंडर्स अबाउट द मूवमेंट वेयर ही लॉस्ट हिज इनोसेंस and realized that the world is not what he seemed it to be. चाइल्डहुड कविता मार्कस नेटन द्वारा लिखी गई है. इस कविता में कवि अपने बचपन के खो जाने पर विचार कर रहे हैं. वह आश्चर्यचकित हैं कि जब उन्होंने अपनी मासूमियत को खो दिया और वह संसार के पाखंड को महसूस कर सकते हैं कि वो ऐसे नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं. He recalled when his thoughts changed and he realized the hypocrisy of the people around him. He finally settled down to the idea that his childhood went to some forgotten place and is hidden in the face of the innocent infant. वो याद करते हैं कि जब उनके विचार बदल गए और उसे अपने आसपास के लोगों का पाखंड या दिखावा समझ में आने लगा. अंत में वो इस विचार को मान लेते हैं कि उनका बचपन किसी भूली बिसरी जगह चला गया है और वह किसी मासूम बच्चे के चेहरे में छिप गया है. लेट वी स्टार्ट द पोएम. फर्स्ट आई विल रिसाइट द पोएम एंड देन एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन. पोएम नंबर 4 चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नेटन. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? I went to some forgotten place that's hidden in my infant's face. That's all I know. Writer फर्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was it the day? In the first line, the poet wonders about when his childhood came to an end. He asks himself, was it the day he was no longer 11-year old? Was it the day when he realized that hell and heaven existed and yet could not be found in geography or on the map? He realized they are imaginary places that actually do not exist in the world.
पहली पंक्ति में कवि को आश्चर्य होता है कि उनका बचपन कब समाप्त हो गया। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या यह वो दिन था जब वह 11 साल के हो गए थे, या फिर वो दिन था कि जब उन्हें पता चला कि स्वर्ग और नर्क भूगोल या मानचित्र में कहीं नहीं दिखता, बल्कि यह एक काल्पनिक स्थान है जो वास्तव में इस दुनिया में मौजूद नहीं है। In the second stanza, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? In the above stanza, the poet again repeats the same questions about when did his childhood go. He wondered about the day when he started seeing the world with a new perceptions. Adults are hypocrites and are not how they seem to be. The adults who talk of love and preach of love, and yet never beloved so lovingly. They are double-faced in reality. Was that the day when his childhood go? इस पंक्ति में कवि फिर एक प्रश्न दोहराते हैं कि उनका बचपन कब गया। वो उस दिन के बारे में विचार करते हैं जब उन्होंने दुनिया का कपटी या दिखावे वाला रूप देखा कि जो लोग प्रेम से रहने और प्रेम का उपदेश देते हैं पर खुद इस विचार को अपनाते नहीं, वो खुद लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो वास्तविकता में दो तरफा है। क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया? इन द थर्ड स्टेंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was it the day? In the third stanza, the poet deliberates on the same question about when he lost his childhood. He asked himself about possibilities. He wondered about the day he realized that his mind was his own and could use it the way he wants. When he realized that he could produce his own thoughts which were not bound by anyone. When he sensed his own individuality and a separate personality. Was that the day he lost his childhood? कविता की तीसरी पंक्ति में कवि ने उसी सवाल पर फिर विचार किया जब उसने अपना बचपन खो दिया। क्या वो दिन था जब उसे ये महसूस हुआ कि उसका दिमाग उसका अपना है और वह जिस तरह से चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। वह अपने विचारों का उत्पादन खुद अपने दिमाग से कर सकता है। उसके विचार स्वयं उसके हैं, वो किसी से बंधे नहीं हैं। क्या जिस दिन उसे अपने व्यक्तित्व को महसूस किया, क्या वो दिन था जब उसे अपने बचपन को खो दिया? फोर्थ स्टेंजा में पोइट बोलते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इज एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। इन द लास्ट स्टेंजा द पोइट remerses about his lost childhood. He concludes that his childhood had gone to some forgotten place which will never come back. He cherished his innocence which vanished now and could be only seen in a baby's face. He only has sweet memories of his childhood which would soon fade away. He also conveyed a message that the innocence of childhood stays till the time one is an infant and that is all he knows. पोएम की लास्ट लाइन में अपने खोए बचपन के बारे में वो बताते हैं और कहते हैं कि उनका बचपन किसी ऐसी भूली बिसरी जगह चला गया है जो कभी वापस नहीं आएगा और केवल एक मासूम बच्चे के चेहरे में उसे देखा जा सकता है। उनके पास केवल उनके बचपन की मीठी यादें हैं। उन्होंने एक संदेश भी दिया कि बचपन की मासूमियत उस समय तक रहती है जब तक कि वह एक शिशु है और जब वह बड़ा हो जाता है तो वे मासूमियत कहीं खो जाती है। तो बच्चों, आपको ये पोएम बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आइए हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में विचार करते हैं।
इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस में पहली डिवाइस है राइम स्कीम। ये पोएम राइमिंग स्कीम में है। पोएम के फर्स्ट पैराग्राफ में जिसे राइमिंग स्कीम दी गई है ABBCCD। पोएम की पहली लाइन को A दिया है, दूसरी लाइन को B दिया है, तीसरी लाइन 11 का राइमिंग हेवन है इसलिए इसे भी B दिया गया है। चौथी लाइन में ज्योग्राफी, चौथी और पांचवी लाइन को C दिया गया है और छठवीं लाइन को D से शो करते हैं। इसी तरह दूसरी डिवाइस है रिफ्रेन। रिफ्रेन का अर्थ होता है रिपीटेशन ऑफ फ्रेज। फ्रेज का अर्थ है पोएम की पहली लाइन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो और लास्ट लाइन वॉज दैट द डे। इन दोनों लाइनें पोएम की हर स्टेंजा में रिपीट हुई हैं जिसे हम रिफ्रेन कहते हैं। तीसरा डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा का अर्थ होता है दो या दो से ज़्यादा सेम वर्ड को यूज़ करना, जैसे सेकेंड लाइन में वॉज इट द डे और थर्ड लाइन में वॉज इट द टाइम, जिसे हम एनाफोरा कहते हैं। चौथा डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस यानी वॉवेल साउंड जो प्रोमिनेंट होते हैं, बार बार आ रहे हैं। तो देखिए पोएम की सेकेंड लाइन वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, इसमें ई साउंड प्रोमिनेंट है। इसी तरह से थर्ड लाइन में वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, इसमें भी ई साउंड प्रोमिनेंट है। फिर हम पांचवी डिवाइस देखते हैं इंजाबमेंट। इंजाबमेंट का अर्थ होता है फर्स्ट सेंटेंस अपनी लाइन में ख़त्म ना होते हुए कोई पंक्चुएशन मार्क के बिना सेकेंड लाइन में जाके पंक्चुएशन मार्क आता है। तो ये हम देख सकते हैं पोएम की तीसरे पैराग्राफ में प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन, जहाँ पे ये ओन पे आके पंक्चुएशन मार्क आया है, इसे हम कहते हैं इंजाबमेंट। नेक्स्ट डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का अर्थ होता है कॉन्सोनेंट का बार बार रिपीट होना, जैसे पोएम की तीसरे स्टेंजा में हम देख सकते हैं माई माइंड और उसकी थर्ड लाइन में विच एवर वे, जिसमें माई माइंड में एम का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है और विच एवर वे में W का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। उसके नेक्स्ट लाइन में थॉट्स दैट, जिसमें द का साउंड रिपीट हो रहा है। आइए बच्चों चाइल्डहुड पोएम की समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। इन द पोएम द पोइट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड एंड द इनोसेंस ही हैड, he become conscious that he no longer sees the world as he did earlier and he can sense the hypocrisy in people. He recall many instances in his life when he could have lost his childhood. He wondered if it was the day he ceased to be 11 or he realized that hell and heaven did not exist in the world and no one could find them in the geography. बच्चों इस कविता में कवि आश्चर्यचकित है कि जब उन्होंने अपना बचपन और अपनी मासूमियत को खो दिया, वो वह दिन था जब उन्होंने ये लोगों के दिखावे को महसूस किया या उन्होंने अपने उन उदाहरणों को याद किया जब अपना बचपन खो चुके थे। वह सोचते हैं कि क्या यह वो दिन था जब वो 11 साल के थे या जब उन्हें ये महसूस हुआ कि नर्क और स्वर्ग दुनिया में कोई जगह नहीं है, उन्हें केवल कल्पनाओं में ही देखा जा सकता है। पोएम के दूसरे स्टेंजा में कवि कहते हैं ही टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी व्हेन ही रियलाइज दैट एडल्ट आर नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी एंड दे आर hypocrites. They talk and preach of love, but their action do not say so. Was it the day when he realized that his mind was his own and capable of producing his own thoughts? That and he is an individual with his particular personality. राइटर कहते हैं वो संभावना के बारे में बात करते हैं जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वयस्क वे नहीं हैं जैसा वो जताते हैं। वे कपटी हैं, वे बात करते हैं प्रेम से रहने की और उपदेश देते हैं प्रेम का, लेकिन उनके कार्य ऐसे नहीं हैं। क्या वो दिन था जब मैंने ये महसूस किया कि मेरा बचपन खो गया है
या फिर जब मैंने ये महसूस किया कि मेरा दिमाग मेरा अपना है और वह अपने विचारों का उत्पादन करने में सक्षम है। और जब मैंने ये एहसास किया कि मेरे विचार किसी से बंधे हुए नहीं हैं, मैं अपने विचारों को खुद आगे बढ़ा सकता हूँ, सोच सकता हूँ, अपने किसी भी कार्य को करने में मैं खुद सक्षम हूँ। क्या जब मैंने ये जाना तब मेरा बचपन कहीं खो गया था? लास्ट में पोइट कहते हैं, ही टॉक अबाउट द whereabouts of his childhood. He conclude that it had gone to some forgotten place and it can only be found in the innocent face of an infant. पोइट कहते हैं, वह अपने बचपन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि ये किसी भूले जगह पर खो गया है, भूली बिसरी जगह पर चला गया है और ये केवल एक मासूम बच्चे के चेहरे पे देखा जा सकता है। इस तरह से पोइट हमें संदेश दे रहे हैं कि हमारा बचपन कहीं दूर चला गया है और वो हमें एक संदेश भी दे रहे हैं कि हमारे बचपन की मासूमियत उस समय तक रहती है जब तक कि हम कोई एक छोटे बच्चे के समान हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों को, हम लोगों को, दुनिया को समझने लगते हैं तो हमारा बचपन हमसे कहीं दूर चला जाता है। आई थिंक बच्चों ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।